آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شورا کی کمیٹی بنانے پر بات کریں گے اور کمیٹی میں کون کون سے صحابہ شامل تھے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ السلام علیکم پیارے دوست۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کمیٹی بنائی، اس قصہ میں لوگوں نے اتنی ملاوٹ کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بہت اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنا کر بہت بڑی سازش کی، اپنے بیٹے کو بطور مبصر اور ثالث بنا کر بٹھا دیا، اور یہ کہ 3 دن کے اندر اندر فیصلہ نہ ہوا اور 3 ووٹ برابر ہوں تو جس کے حق میں عبد الرحمن بن عوف کا ووٹ ہو وہ خلیفہ مقرر ہوگا، اگر باقی نہ مانے تو اختلاف کرنے والوں کے سر قلم کر دو۔ مزید یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے ہم خاندان تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں صرف ایک ووٹ تھا، وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ نہ بن پائیں۔ خدا گواہ ہے، ان باتوں میں ذرا سچائی نہیں ہے۔ نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ویٹو کا اختیار دیا کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اور نہ باقی اختلاف کرنے والوں کے قتل کا حکم دیا۔ امام محمد ابن جریر پہلی نے اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں ان باتوں کی جو سند لکھی ہے، اس کے مطابق ان سب باتوں کا راوی علی بن محمد المدائنی ہے۔ علامہ عبداللہ مامکانی شیعہ عالم کی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال ہے، جس میں راویوں کے حالات لکھے ہیں اور ان کے سچے جھوٹے ہونے کا بتایا ہے۔ اس کتاب میں نمبر 8510 پر اس علی بن محمد المدائنی کا حال لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ایک اور بات شورا کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اجلاس شروع ہوا تو وہاں بہت جھگڑا ہوا اور ایک حدیث المناشدہ کئی صفوں کی بنائی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے وہاں تقریر کی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حکومت ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ شورا میں رشتہ دار اکٹھے ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرے خلاف ہیں۔ اس روایت کو ابو طالب طبرسی شیعہ عالم نے اپنی کتاب الاحتجاج میں لکھا ہے۔ یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 72 سے صفحہ نمبر 76 تک لکھی ہے، جس میں بتایا کہ شورا میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فضائل کا اقرار کرایا۔ یہ روایت شروع ہی عمرو بن شمر سے ہوتی ہے۔ علامہ عبداللہ مامکانی شیعہ عالم نے نمبر 8714 پر اس عمرو بن شمر بن یزید ابو عبداللہ الجی الکوفی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہیں۔ اس قصہ مناشدہ کے بارے میں سنی امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الزہبی مینی محق رجال یعنی راویوں کی کسوٹی نے اس قصہ کو لکھا۔ انہوں نے مختصر لکھا مگر لکھا ہے، اور میزان الاعتدال جلد 1 نمبر شمار 1643 پر الحارث بن محمد ان ابو طفیل کو مجہول لکھا ہے۔ یہ پہلا آدمی ہے جس سے یہ قصہ سنیوں کی کتاب میں شروع ہوتا ہے۔ اس کو شیعہ عالم نے ضعیف لکھا ہے۔ دوسرا راوی ظافر بن سلیمان ہے۔ تنقیح المقال میں اس ظافر بن سلیمان کو امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 2 نمبر شمار 2819 پر ضعیف لکھا ہے۔ اس راوی کو تنقیح المقال میں نمبر 4186 پر علامہ عبداللہ مامکانی شیعہ عالم نے امامی مجہول لکھا ہے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ حدیث المناشدہ خبر المنکر یعنی غلط ہے۔ شورا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی ہے جو دوسرے کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائے اور وہی باقی 2 کا ثالث ہو؟ حضرت زبیر حضرت علی علیہ السلام کے حق میں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام دونوں خاموش رہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اب میرا حکومت میں کوئی دخل نہیں، اور خلیفہ میں چنوں گا۔ مجھ پر اللہ اور اسلام کا عہد ہے کہ میں بغیر کسی رشتہ داری کے لحاظ کے اس کو چنوں گا جس کو امت کے مشورے سے بہتر پاؤں گا۔ ان کے اس حلف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کئی دن سو نہیں سکے۔ انہوں نے مدینہ کے مرد و عورت اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے مشورہ کیا، گورنروں سے پوچھا۔ اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں تھی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے بھانجے حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کے وقت بلایا اور ان سے کہا، شورا کے باقی ارکان کو بلاؤ۔ وہ سب تشریف لائے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر وہ پگڑی باندھی جو حضور نے ان کے سر پر باندھی تھی، اور بہت دیر تک آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی۔
इस मकाम पर मिलावट करने वालों ने ये मिलावट की कि फिर उन्होंने पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा, हाथ निकालो, मैं बैत करता हूँ, मगर ये वादा करो कि तुम कुरान और सुन्नत और अबू बकर उमर के तरीक़े के मुताबिक हुकूमत करोगे। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं शेखैन बानाम के तरीक़े का पाबंद नहीं हूँगा। फिर यही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा तो उन्होंने इक़रार कर लिया। अब देखें ये तरीक़े शेखैन की पाबंदी वाला टुकड़ा ही कैसा बम है। अहले हदीस हजरात तो इससे तकलीद कार्ड निकाल रहे हैं और शिया कहते हैं अगर अबू बकर उमर नेक होते तो अली अलैहिस्सलाम उनकी पैरवी से इनकार क्यों करते। फतहुल बारी में इमाम इब्न हजर ने ये मिलावट वाला फ़िक्रा लिखकर इसके रावी लिख दिए और लिखा कि सुफियान बिन वकी ज़ईफ़ हैं। फतहुल बारी 13 में 197 में इमाम इब्न हजर ने फतहुल बारी जा 13 मस 194 पर असल बात लिख दी है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना के सब मुहाजिरों अंसार साहबा को बुला लिया, 5 फौजी कमांडरों को भी बुला लिया और मस्जिद में इज्तिमा में खुतबा पढ़ा। फिर कहा, अली, मैंने सबसे फर्दन ही पूछा, लोग उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर किसी को नहीं समझते, तुम नाराज़ ना होना। फिर सिर्फ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ही ये बात कही कि मैं तेरी बैत करता हूँ और तुम अल्लाह के हुक्म, सुन्नत रसूल और शेखैन बा के तरीक़े कार पर हुकूमत करना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बैत की और फिर बाकी मुहाजिर अंसार साहबा ने और हाजिर फौजी कमांडरों ने बैत की। शूरा के मरहले में किसी से कोई बेईमानी नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर यह तोहमत भी लगाई जाती है कि उन्होंने एक तरफ 6 आदमियों की कमेटी बनाई जो सब के सब अशरा मुबशरा में से थे और दूसरी तरफ उनके ऐब भी बयान किए। अगर उनमें ऐब थे तो उनको शूरा में शामिल क्यों किया, और ये कि उनमें वाकई ही ऐब थे तो वो खिलाफत के अहल ही न थे। ये कहानी भी अली बिन मोहम्मद अल मदाइनी बयान करता है जो कि मजहूल रावी है। ये शिया आलिम आलामा मामकानी के नज़दीक भी ज़ईफ़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनमें से किस का कोई ऐब बयान नहीं फरमाया बल्कि उनकी तारीफ़ की कि उनसे रसूल इस दुनिया से राज़ी तशरीफ़ ले गए। मुस्तदरक हाकिम जीम 3 मस 95 पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से मंसूब एक रिवायत दर्ज है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा पर एतराज़ में हवाले के तौर पर पेश की जाती है। जब नामज़द मेंबरान शोरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास से उठकर गए तो आपने कहा, मैंने कमेटी तो बना दी है, मगर अल्लाह अगर इन लोगों का भला चाहे तो इस गंजे यानी सैयदना अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना लें। ये इनको हक पर चलाएगा। इसकी गर्दन पर तलवार भी रख दी जाए तो ये हक को नहीं छोड़ सकता। काश ये इसको खलीफा बना लें। इब्ने उमर ने कहा, अगर आप समझते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना दुरुस्त है तो आप खुद क्यों नहीं बना देते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अगर मैं बना दूं तो ये मुझसे बेहतर आदमी यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया, और अगर ना बनाऊं तो ये भी मुझसे बेहतर ने किया यानी रसूल करीम ने किसी को नामज़द नहीं फरमाया। इस रिवायत से बात और ज़्यादा ख़राब होती नज़र आती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह जानते हुए भी कि हक़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है, इनको नामज़द नहीं फरमाया और कमेटी बनाकर फसाद शुरू करा दिया। इस रिवायत में मौली उमरा ज़ईफ़ रावी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने शौरा में उस वक्त जिंदा सहाबा अशरा मुबशरा में 6 अफराद को कमेटी में शामिल किया, जिनके नाम ये हैं: हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हा। 7वें फ़रद हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बहनोई थे, इनको कमेटी में शामिल ना किया। इब्ने हजर फ़तह बारी 7 सफ़ा 61। कमेटी को ये तंबीह भी फरमा दी थी कि अगर तुमने इख्तिलाफ़ किया तो शाम से मुआविया और यमन से अब्दुल्ला बिन रबिया आकर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेंगे। आले सहाबा जिल्द 4 सफ़ा 65 और जिल्द 3 सफ़ा 414। ये भी फरमाया था कि मेरे बाद ए लोगों, आपस में ग्रोह बंदी से बचना। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो मैं मुआविया मौजूद हूँ। अमीर मुआविया के बारे में फरमाया, इसे शाम का इलाका सुपुर्द करके गलती की। अगर इस बात की समझ जो अब आई है पहले आ गई होती तो मैं शाम का इलाका कभी अबू सुफियान के दोनों बेटों को ना देता। मुस्लिम की शरह फ़तह अल मुल्हिम जिल्द 7 मसनफ़ शब्बीर अहमद उस्मानी। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी लिखते हैं, यही लोग हैं जो अहले बैत को हुकूमत मिलने के मुखालिफ थे, और इसका सबूत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की इस बात से मिलता है कि हमने इनको मार मार कर इस्लाम में दाखिल किया है, यानी वो शिकस्त खा कर इस्लाम में दाखिल हुए। मौलाना लिखते हैं, ये मुस्लिम की शरह इकमालुल मुअल्लिम में अल्लामा आबी मालिकी ने लिखा है। शूरा के सिलसिले में एक और बात की वजाहत ज़रूरी है कि एक तरफ तो इस्लाम में तलब ओहदा मना है और किसी आदमी के नाअहल होने के लिए यही काफ़ी है कि वो किसी ओहदे को तलब करे।
दूसरी तरफ जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उस्मान और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा, हम 3 उम्मीदवार खिलाफत रह गए हैं, तो क्या हम में से कोई दस्तबरदार होकर सालिस का किरदार अदा करने पर तैयार है? तो इस मौके पर दोनों शेख चुप रहे। इससे इन दोनों का तालिब हुकूमत होना जाहिर होता है। इस सिलसिले में यह बात याद रखनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं जब ओहदा तलब करना पड़ जाता है, जैसा कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के तलब ओहदा का जिक्र सूरह यूसुफ 55-12 में है। एक तालिब इक़्तिदार वो होता है जो अपनी ज़ात के लिए ओहदा तलब करता है। ऐसा आदमी हदीस के मुताबिक खाइन, बेदयानत और नाअहल है। एक वो है जो देखता है कि अगर मैं जो अहल हूँ खुद को ओहदे के लिए पेश ना करूँ तो नाअहल ओहद पर बैठ जाएगा और उम्मत बर्बाद हो जाएगी। इस तलब ओहदा में वो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की तबीयत की नरमी और इंतज़ामी सलाहियत की कमी की वजह से खुद को बतौर उम्मीदवार खिलाफत बरकरार रखा, मगर जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के कत्ल के बाद हालात बहुत बिगड़ गए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनने से इनकार किया कि उनके ख्याल में लोग ऐश व इशरत के आदी हो चुके थे और उनका वापस लौटना बहुत मुश्किल था। यही अंदेशा बाद में सच साबित